Okay. So directrix will be y is equal to minus p. So here in this case, y is equal to minus the value of p is 2 minus in the bracket 2. So that will become y is equal to minus 2. This is the equation of the directrix. Muzammil Wasi. This is the equation of the directrix. Now focus we found, this is the focus directrix, equation of the directrix. Now the third is sketch. How to sketch? Here I am sketching. Focus is 0, 2. Vertex is 0, 0. This is the vertex. This is the vertex. And focus 0, 2. This is focus. So now this is the focus, this is the vertex. And the line of symmetry will be the y-axis. So y-axis. So we will draw from here. This is the parabola. This is the parabola. Directrix will be on the opposite side. This is 2 distance. On the other side, 2 distance. This is positive 2. This is minus 2. So y is equal to, this point will be 0, comma minus 2. So y is equal to minus 2. This is the equation of the directrix, or we may write y plus 2 equal to 0. We may write this one, y plus 2 equal to 0. No problem. This is also the equation of the directrix. Y is equal to minus 2 or y plus 2 is equal to 0. So this is the answer. This is the sketch. Focus 0, 2. Directrix y is equal to minus 2 or y plus 2 equal to 0. And that sketch, this is the sketch. So in this way, we will do the questions. That was question number 15. Now question number 16. X square is equal to 16y. Question number 16. Sorry, say. No, question number 17. X square is equal to minus 12y. Question number 17. 16 is the same type that we have done in question number 15. That was x square is equal to 16y. This is the negative. So if we write in the standard form, it will be x minus 0 whole square is equal to minus 12 y minus 0. So vertices will be 0, 0. Vertex is 0, 0. There is only one vertex. This is the vertex. Vertices mean there are more than one vertices, plural of vertex. And the transverse axis or the axis of the parabola y-axis.
Axis along y-axis. Axis of the parabola, y-axis. Rabia Maria. Okay. Axis of parabola is y-axis. Vertex हमें पता चल गया भाई अपना 4p. This will be minus 4p. The coefficient of y. 4p is equal to minus 12. So p will be equal to minus 3. p क्या आ गया? minus 3 आ गया. अब हमें एक्सेस भी पता चल गया, वर्टेक्स भी पता चल गया, पी वैल्यू भी पता चल गया. तो वी विल फाइंड फोकस. So this is along y-axis. So minus 3 will be added in the y coordinate of the transfer of the vertex. So P will be added in the y coordinate of the vertex. X coordinate as it is रहेगा 0, 0 minus 3 will be minus 3. So this is the focus. Second thing, directrix. Directrix will be on the opposite side. Equation of the directrix. Equation of the directrix. क्या होगी इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स? ये y एक्सिस पर है तो y इक्वल टू माइनस पी माइनस माइनस 3. p हमारे पास माइनस 3 है, p की जगह माइनस 3 पुट कर दिया. सो इट विल बिकम y इज इक्वल टू 3. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स. और y माइनस 3 इक्वल टू 0. हम इसको यूं भी लिख सकते हैं. सो y माइनस 3 इक्वल टू 0. यूं लिख ले या यूं लिख ले. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स. ये भी पता चल गया. फोकस पता चल गया. ये फोकस है हमारे पास. इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ये या ये कोई एक. इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स भी हो गया. अब थर्ड क्या? स्केच. ये कौन है? ये जवेरिया. Anyone may convey the message to Shahryar Faisal. He or she must write the ID. Okay. Now we will draw the sketch. Sketch हम इसका यहाँ बना लेंगे. X 0 origin O. ये किस पर है? y एक्सिस पर. और माइनस p फोकस क्या है? 0, वर्टेक्स क्या है? 0, 0. So this is the vertex V. फोकस क्या? 0, minus 3. So 0, minus 3 will be over there. अब हम इसका स्केच बना लेंगे तो इस तरह बनेगा. ये हमारे पास स्केच आ गया इसका. अब डायरेक्ट्रिक्स अपोजिट साइड पे बनेगी. ये y इज इक्वल टू 3 है तो यहाँ से 3 यूनिट्स ले लेंगे. जितना ये है उतना ही डिस्टेंस पर यहाँ बनती है क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स का फोकस से वर्टेक्स से और फोकस से सेम डिस्टेंस होता है. कोई पॉइंट होगा इस पर, उसका और इसका डिस्टेंस सेम होगा. ये डायरेक्ट्रिक्स है. इसकी इक्वेशन हमने बनाई है y इज इक्वल टू 3. ये y माइनस 3 इक्वल टू 0. ये डायरेक्ट्रिक्स बन गए. सब्जवारी अली कमाल.
आंसर Anyone may convey the message to Akram Khan. He must write his ID. So this is the equation, and this is the focus, this is the directrix, this is the sketch. All the three things have been found. तो पहले हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, इस फॉर्म में, उसके बाद हम वर्टेक्स निकालेंगे, उसके बाद हम एक्सेस लिखेंगे, फिर उसके बाद पी की वैल्यू निकालेंगे। ये पी की वैल्यू अगर अलोंग वाई एक्सिस है तो वाई के कोऑर्डिनेट में ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक्स कोऑर्डिनेट एज इट इज लिख देंगे, पी की वैल्यू इसमें ऐड कर देंगे, तो वो हमारे पास फोकस हो जाएगा, एक्स एज इट इज पी, और वाई कोऑर्डिनेट में पी की वैल्यू क्योंकि वाई एक्सिस है, तो ये हमारे पास फोकस हो जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स विल बी ऑन द अपोजिट साइड, वाई एक्सिस पर है तो वाई इज इक्वल टू माइनस पी, तो जो भी पी की वैल्यू होगी उसको नेगेटिव कर देंगे, तो माइनस ऑफ माइनस p it will become y is equal to 3. मोहम्मद मुबीन, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 70। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, y square is equal to 16x। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, y माइनस 0 होल स्क्वायर is equal to 16 into x minus 0। आदिल, ओके, वर्टेक्स हमारे पास आ गया, उसके बाद हम एक्सेस, एक्स एक्सेस, एक्सेस हो गया। अब फोकस निकालते हैं, फोकस, सॉरी पहले पी की वैल्यू आएगी तो फोकस निकलेगा। पी हम वी विल फाइंड पी, 4p is equal to 16, so p will be equal to 4, p की वैल्यू 4 आ गई। अब हम फोकस निकालते हैं, एक्सिस एक्सिस है तो वर्टेक्स से एक्स कोऑर्डिनेट में p की वैल्यू ऐड करेंगे, 0 में 4 ऐड करेंगे तो 0 प्लस 4, और y कोऑर्डिनेट एज इट इज रहेगा क्योंकि x एक्सिस पर है, y कोऑर्डिनेट एज इट इज रहेगा, so it will become, focus will become 0 plus 4 will be 4 comma 0,
This is the focus. Directrix. ये x एक्सिस पर था तो x इज इक्वल टू -4. So it will become x equal to -4. X equal to -4. This is the equation of the directrix. -4 को इस तरफ ले आएंगे तो x + 4 इक्वल टू 0. यूं लिख ले या यूं लिख ले, ये भी सही है और ये भी सही है. और ये फोकस है हमारे पास. फोकस और डायरेक्ट्रिक्स हमने निकाल लिया. अब स्केच करना है. ओरिजिन. अब हमने स्केच करना है. वर्टेक्स इसका 0 0 पर है तो वर्टेक्स, दिस इज द वर्टेक्स V 0 0. फोकस क्या है हमारे पास 4,0. पॉजिटिव 4 है. इस यहाँ पर कहीं फोकस बनेगा. फोकस यहाँ बनेगा हमारे पास 4,0. ये फोकस बन गया. अब ये वर्टेक्स है, ये फोकस है, तो इस तरफ हमारे पास ये पैराबोला बन गया. उसके बाद हमने क्या करना है, इसका डायरेक्ट्रिक्स है x -4 तो -4 इस तरफ आ जाएगा. जितना ये फोकस है उतने ही डिस्टेंस पर ये यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स बनेगी. ये डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास बनेगी x इज इक्वल टू -4. x इज इक्वल टू -4. दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स. तो ये स्केच भी हमारे पास हो गया. यहाँ तो नजर नहीं आ रहा. यहाँ ये इसकी इक्वेशन बन गई x इज इक्वल टू -4 डायरेक्ट्रिक्स की. तो हमारे पास फोकस हो गया. फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, स्केच. मोहम्मद उजैर. Eleven to 6. Now, this is question that was question number 19. अब इसमें x एक्सिस था. अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे. y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x. y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x. क्वेश्चन नंबर 21. इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे. y -0 होल स्क्वायर -4 इंटू x -0. वर्टेक्स वर्टेक्स 0 0. एक्सेस क्या होगा इसमें, x है, ये y पर स्क्वायर है, x पर स्क्वायर नहीं तो x एक्सेस. अब p की वैल्यू निकालनी है.
सैयद मुजम्मिल वसीम। पी की वैल्यू निकालनी है, सो 4p इज इक्वल टू -4, p विल बी इक्वल टू -1। ये हमें तीन चीजें पता चल गई, फोकस, एक्सेस और p, तो हम फोकस निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पर है तो एक्स कोऑर्डिनेट में -1 ऐड कर देंगे, तो -1, वाई कोऑर्डिनेट एज इट इज रहेगा वर्टेक्स का, तो ये फोकस आ गया। ये फोकस आ गया। आप डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस था तो एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस पी, माइनस पी, पी की वैल्यू -1 है, तो एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया। x इक्वल टू 1, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स, और x -1 इक्वल टू 0, ये या ये इक्वेशन इसकी बन गई। x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 इक्वल टू 0, ये तीनों चीजें, दोनों चीजें हो गई, फोकस भी हमें पता चल गया, डायरेक्ट्रिक्स भी पता चल गया। अब हमने सिर्फ इसका ड्रॉ करना है, स्केच बनाना है। स्केच हम बना लेते हैं, स्केच बना लेते हैं एक्स और वाई। ये हमारे पास ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ये वर्टेक्स है हमारे पास 0 0, ओरिजिन पर वर्टेक्स है हमारे पास 0 0, तो एफ क्या हो गया, -1, 0, तो यहाँ एफ आ जाएगा, ये एफ है। यहाँ पर ये फोकस वर्टेक्स है हमारे पास, वर्टेक्स में से पास होगा ये स्केच बन गया। अब इसकी डायरेक्ट्रिक्स के अगर x इक्वल टू 1 है तो 1 उस तरफ होगा, जितना ये डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस पर अपोजिट साइड पर यहाँ पर, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया x इक्वल टू 1, ये डायरेक्ट्रिक्स। सो दिस इज focus, directrix and the vertex. Focus, directrix and the sketch. Vertex already found, vertex, x-axis and p, ये तीन चीजें निकालेंगे, उसके बाद ये तमाम हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका डिटरमिन कर सकते हैं। So this is the answer. That was question number 21. तो ये हमने चारों केसेस पढ़ लिए कि when y एक्सिस पर पॉजिटिव साइड पर बनेगा, when y एक्सिस पर नेगेटिव साइड पर बनेगा, और जब x एक्सिस पर पॉजिटिव साइड पर बनेगा और x एक्सिस पर नेगेटिव साइड पर बनेगा। ये चार केसेस थे। अब बाज़ औक़ात क्वेश्चन इस किस्म के भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 23 हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हम लेते हैं। एक्स स्क्वायर -4y = 0।
तो आप इक्वेशन को देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि पहले निशानी ये होगी कि चाहे एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर में से कोई एक मौजूद होगा, दोनों मौजूद नहीं होंगे। किसी एक का मौजूद होना लाजमी है, एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर में से दोनों मौजूद होंगे तो फिर वो एलिप्स पैराबोला की इक्वेशन नहीं होगी। पैराबोला के लिए जरूरी है कि इसमें एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर में से सिर्फ कोई एक हो। तो इसमें एक्स स्क्वायर मौजूद है, वाई स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन ऑफ द पैराबोला है। इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, वाई स्क्वायर होता और एक्स स्क्वायर ना होता तो भी इक्वेशन ऑफ द पैराबोला होती। तो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला है, और इक्वेशन ऑफ द पैराबोला है तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्क्वायर वाले एक तरफ और नॉन स्क्वायर वाले दूसरी तरफ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। फिर फर्दर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, यानी एक्स माइनस होल स्क्वायर में लाएंगे इसको, एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर 4 इंटू वाई माइनस 0। ये हमारे पास फर्दर स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आ गई। अब इसको हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास वर्टेक्स हमारे पास 0 0 है, जीरो जीरो है। एक्सेस क्या है हमारे पास? वाई एक्सिस है, इस पर स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर नहीं है, तो वाई एक्सिस है। एक्सेस हमें पता चल गया। वर्टेक्स अब पी की वैल्यू निकालेंगे, इसको 4p लेते हैं हम, 4p इज इक्वल टू 4, तो p इज इक्वल टू 1, 4/4 तो 1 आ जाएगा। तो p इज इक्वल टू 1 हमारे पास, p की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। p की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। मोहम्मद शेख ओके। अब हम इसमें फोकस निकालेंगे। y कोऑर्डिनेट था, y एक्सिस था, तो y कोऑर्डिनेट वर्टेक्स के y कोऑर्डिनेट में हम p की वैल्यू ऐड कर देंगे। x कोऑर्डिनेट एज इट इज रहेगा 0, 0 + 1 विल बी 1। तो क्या हो गया? 0, 1। अब हम इसमें हम वो निकालेंगे इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स क्या है? ये y एक्सिस था, तो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ वैल्यू ऑफ p 1। तो ये हमारे पास y - 1 जो है, ये हमारे y इज इक्वल टू -1 इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स आ गई। y + 1 इक्वल टू 0 ये भी हो सकता है। अब हम इसके स्केच करना है हमने। हम इसको स्केच करना है हमने इसको। ओरिजिन और हमारे पास वर्टेक्स, यही वर्टेक्स है हमारे पास, ओरिजिन पर वर्टेक्स है, तो यही हमारे पास वर्टेक्स है, यही हमारे पास वर्टेक्स है। उसके बाद हमने क्या फोकस 0, 1, तो 0, 1 यहाँ आ जाएगा, y 0, 1 और यहाँ हम इसको ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद
y इज इक्वल टू -1 पर इतने ही फासले पर यहाँ पर अपोजिट साइड पर ये डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट y इज इक्वल टू -1, ये हमारे पास डायरेक्ट एक्स बन गई। कौन कौन आ गई? रजाउल मुस्तफा, अनस अब्दुलवारी, जुनैरा, हुसैन बिन जफर, सुनैरा। So this is the way we will solve the question. Now another question. Question number, we'll do question number 28. ये करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 28, 29 एक वो एक एक्स एक्सिस पर है, एक वाई एक्सिस पर है, तो हम 28 ही चले कर लेते हैं। ये मैं हूँ, ये मेरे सर है और यार टाइम ज़ाया हो रहा है। टाइम ज़ाया हो रहा है, ये मेरे सर है, ये मैं हूँ। सर ये गलत हो रहा है। हाँ मैं अभी इसको रिमूव कर रहा हूँ ना बेटा, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। सर रिमूव कर दें, फेक आईडियों से आ जाता। हाँ हाँ इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। क्या नंबर है? 10931 10931 खुद ही रिमूव हो गया भाई, खुद ही निकल गए बाहर। ओके, सो दिस इज द, खुद ही दफा हो गई। Okay, so that was question number, we are doing question number 28, 2x square minus 3y equal to 0. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाले एक तरफ, स्क्वायर वाले जो भी है एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर जो भी है वो एक तरफ, और विदाउट स्क्वायर वाले दूसरी तरफ। आप 2 से डिवाइड कर दें, एक्स स्क्वायर